हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing the classification of malocclusion. जो उसमें हमने सबसे important चीज़ें जो डिस्कस की थी, that was the Engels classification, then the incisor classification and the Simon's classification. Engels classification में क्या था? Class 1 malocclusion, Class 2 malocclusion and Class 3 malocclusion and normal occlusion. What is the difference between the normal occlusion and the Class 1 malocclusion is that they both have the same molar relationship. जो class 1 molar relationship होता है, that is the mesiobuccal cusp of maxillary first molar occlude in the buccal groove of the mandibular first molar. Normal में भी यही होगा, class 1 malocclusion में भी यही होगा. Difference क्या होगा? In the normal occlusion, the teeth will be well aligned on the line of occlusion, but in the class 1 malocclusion, the position of the teeth will be disturbed on the line of occlusion. Irregular teeth होंगे. Then class 2 malocclusion, when the mesiobuccal cusp of the maxillary first molar occlude in the interdental area between the mandibular second premolar and the first molar. यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि distobuccal cusp of maxillary first molar will occlude in the buccal groove of the mandibular first molar. And then class 2 malocclusion is further divided into class 2 division 1 and class 2 division 2 according to the position of the incisors. If incisors are proclined, then division 1. If incisors are retroclined, then division 2. Then class 3, the mesiobuccal cusp of maxillary first molar will occlude in the interdental area between mandibular first and second molar. फिर incisor classification हमने पढ़ी थी, that is the relationship of the lower incisor in relation to the cingulum plateau of the maxillary incisors. ठीक है, तो वो भी class 1, class 2, class 3 था. Then the Simon classification में जो basically जो planes उसने दिए थे, Frankfurt horizontal plane, orbital plane and the mid sagittal plane. And now the Ackermann-Profit classification system. The Ackermann-Profit classification system का जो ये diagram है, this diagram is also known as the Venn diagram. VENN, Venn diagram. Ackermann-Profit classification system. The diagram is also known as the Venn diagram. क्योंकि sometimes exam में पूछा जाता है what is the Venn diagram, तो वो basically Ackermann-Profit classification का पूछते होते हैं. Now, according to this Venn diagram, they basically classify the malocclusion into the 9 groups. 9 groups बनाए, that is group 1 is the intra-arch alignment. Intra-arch alignment or the symmetry means within the arch जो है intraoral जो है, तो arch की symmetry and the arch की alignment जो है वो assess होगी in the group 1. Then group 2, in the group 2 they will basically assess the convexity or the concavity of the face. कि extraoral facial profile क्या होगा मतलब, तो वो fall करेगा in the group 2. तो group 1 में intra arch alignment assess होगी, group 2 में profile assess होगा. मतलब मैं साथ साथ ये तस्वीरें भी दिखाता जाता हूँ ताकि आपको understand करने में आसानी हो. This is the group 1 intra arch alignment. अच्छा, इसमें क्या होगा कि intra arch alignment and the symmetry, suppose if this arch is well aligned, and अगर आप ये देखें कि इस pictures में there is a spacing in the arch and there is a crowding in the arch. तो group 1 अगर कैसे हम इस Ackermann-Profit classification system से कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, सपोज एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसका एक्स्ट्रा ओरल प्रोफाइल जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंट्रा ओरल हम जब हम असेस करते हैं, देयर इज जस्ट स्पेसिंग इन द आर्च,
तो हम ये कह सकते हैं कि दिस अकॉर्डिंग टू द एकरमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन सिस्टम द पेशेंट फॉल्स इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब ये होगा कि पेशेंट को कोई और एक्सटर्नल जो है वो एक्स्ट्रा ओरल प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रा ओरल भी क्या है, देयर इज जस्ट द स्पेसिंग इन द आर्च और क्राउडिंग इन द आर्च। स्पेसिंग और द क्राउडिंग means malposition of the teeth over the line of occlusion. So that is the group 1. Then group 2 क्या होगा? Group 2 is according to the profile. If there is any change in the profile, normal profile से हटके if there is any change, so then we can say कि patient जो है वो group 2 है। Suppose straight profile क्या होगा? अब ये profile assess कैसे करते हैं? Basically we assess the profile by the 3 points. थ्री पॉइंट्स कौन से होते हैं? नेजियन, आपका जो है वो बेस ऑफ द नोज एंड द चिन पोजीशन। ये जो 3 पोजीशंस होती हैं इनको हम देखते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है। मतलब अगर इसमें आप देखें स्ट्रेट प्रोफाइल में ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक डायरेक्शन में है, बट इन द कॉन्वेक्स में क्या है, नेजियन एंड जो आपका पॉइंट ए इसको हम कहते हैं बेस ऑफ द नोज को, तो ये दोनों एक पॉइंट में है, बट जो चिन है वो posteriorly placed है। तो that is the convexity of the face. And concave में क्या है, नेजियन एंड पॉइंट ए एक ही जगह पे है, बट जो चिन की पोजीशन है that is anteriorly placed, तो हम इसको कहेंगे कॉनकेव प्रोफाइल। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल फेस होता है that is mild convexity जो होती है that is the normal profile. नॉर्मल प्रोफाइल स्ट्रेट भी नहीं होता, कॉनकेव भी नहीं होता एंड सीवियरली कॉन्वेक्स भी नहीं होता। देयर इज ए माइल्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फेस। जैसे अगर आप इसमें देखें ये कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है, मतलब ठीक है, उसमें क्या होगा कि कॉन्वेक्सिटी होती है बट कम होगी। मतलब नेजियन पॉइंट जो आपका टॉप वाला पॉइंट है एंड जो आपका बेस ऑफ द नोज है, ये दोनों आपके एक जगह पे होंगे, एक ही लाइन में होंगे। जो आपका चिन पोजीशन होगा वो नॉर्मली 1 to 2 मिलीमीटर पोस्टीरियरली प्लेस्ड होगी, तो वो नॉर्मल प्रोफाइल होगा। सर जी बेटा। सर जो कन्वेक्स प्रोफाइल है हम सिंपली कह सकते हैं कि एंगल क्लास 2 मतलब माल ऑक्लूजन है सर। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो एंगल देखिए क्लास 1 होगा, ठीक है, और अगर सपोज करें कि एंगल क्लास 3 है तो वो कॉनकेव होगा फेस। एंगल क्लास एक क्लास 3 कॉनकेव होगा, क्योंकि क्लास 3 में क्या होता है, लोअर मोलर आगे होता है ना, तो ये लोअर जॉ मैंडिबल आगे, तो क्लास 3 होगा। कॉन्वेक्स में क्या होता है, क्लास 2 में जो आपका लोअर मोलर है वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली लोअर अगर मैंडिबल पोस्टीरियरली प्लेस्ड होगा तो वो कॉन्वेक्स फेस होगा। अच्छा, जो स्ट्रेट प्रोफाइल है वो क्लास 1 भी हो सकता है, ठीक है। और स्ट्रेट प्रोफाइल क्योंकि देखिए एंगल तो सिर्फ और सिर्फ डेंटल रिलेशन बताता है, वो स्केलेटल नहीं बताता, बट हम एक जज कर सकते हैं कि अगर ये डेंटल डिस्क्रिपेंसी है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि स्केलेटल डिस्क्रिपेंसी भी उसी तरह की होती है। मतलब तो स्ट्रेट प्रोफाइल आपका क्लास 1 में मोस्टली होता है, ठीक है। स्ट्रेट प्रोफाइल आपका या तो क्लास 1 में होगा या माइल्ड क्लास 3 में होगा। क्लास 1 और माइल्ड क्लास 3 जो है वो स्ट्रेट प्रोफाइल होगा। देन ग्रुप 3 क्या है, दैट इज द ट्रांसवर्स डेविएशन। एनी प्रॉब्लम इन द ट्रांसवर्स अगर डेविएशन में होगी तो वो फॉल करेगा इन ग्रुप 3। मतलब अच्छा, अब ट्रांसवर्स डेविएशन में क्या डिस्क्रिपेंसी आती है, दैट इज द क्रॉस बाइट, ठीक है। जो पोस्टीरियर पोर्शन में जो क्रॉस बाइट आएगी, नॉर्मली क्या होता है तो जो बक्कल कस्प ऑफ द मोलर्स एंड द प्रीमोलर्स वो ओवरलैप करते हैं मैंडिबुलर बक्कल कस्प को। जो मैक्सिलरी बक्कल कस्प होते हैं वो मैंडिबुलर बक्कल कस्प को ओवरलैप करते हैं, वो नॉर्मल रिलेशन होता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये बक्कल कस्प प्रीमोलर के एंड मोलर के ओवरलैप कर रहे हैं मैंडिबुलर बक्कल कस्प को, तो दिस इज एन नॉर्मल बक्कल रिलेशन। बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी, तो उसमें क्या होगा, वो जो आपकी ट्रांसवर्स रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होगा। मतलब अब आप इस तस्वीर में देखें, इसमें क्या है, ये जो बक्कल कस्प पे ओवरलैप कर रहा है मैंडिबुलर कस्प को ऑन द बोथ साइड, इट इज एन नॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें अगर आप देखें देयर इज एन एज टू एज बाइट, ये एज टू एज बाइट है ट्रांसवर्स। इसका मतलब है कि
या तो मैंडिबल वाइड है या मैक्सिला नैरो है। यूजुअली क्या होता है कि मैक्सिला नैरो होता है, मतलब जिसकी वजह से वो मैक्सिला मैंडिबल को ओवरलैप नहीं कर रहा, उसके ऊपर कस्प टू कस्प रिलेशन में आ रहे हैं। या अगर आप ये देखें इस तस्वीर में क्या है कि जो मैक्सिलरी मोलर्स है वो लिंगुअली है, मैंडिबुलर मोलर्स जो है वो बक्कली है। एंड अगर इस तस्वीर में देखें तो मैक्सिलरी जो है वो टोटली लिंगुअल है एज कंपेयर टू द मैंडिबल। ठीक है, तो एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन विल फॉल इनटू ग्रुप 3। अच्छा, नाउ दिस ट्रांसवर्स डिस्क्रिपेंसी जो है वो दो तरह की हो सकती है, इधर स्केलेटल और डेंटल। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द जो आपके